surrounding area has been lost in the process of healing is not going to come back without doing a full-fledged, systematically designed, monitored, supervised rehab program. So in the today's lecture, we shall be dealing with some model examples of rehabilitation process. And in this course, we are going to learn about the rehabilitation of ankle sprain, ankle injury, and rehabilitation of hamstring injury, hamstring strain. Because ankle is very actively and dynamically used in all the games, and especially particularly in the field games where a lot of running, jumping, etc. are undertaken. Similarly, where a lot of running, sprinting, jumping, hurdling, in all such activities, hamstring muscle is very vulnerable for injury. So these two are the commonest, you can say, injury. In one of the studies which we undertook in sports diploma course students way back in 1991, conducted on 18 disciplines conducted at that time, we found that injury to ankle sprain was commonest among all the sprains, and injury to hamstring was commonest among all muscle injuries, among all muscle strains. So, as you know, and it was also found in that study that almost 50% of all the injuries that were studied, it was ligament injury, and almost 25% injuries were injury to muscles, and rest of the injuries were distributed in other tissues such as bursa, fascia, cartilage, skin, bone, etc. So almost you can say that 3/4 of the injuries were either ligament injury or muscle injury. And out of ligament and muscle, it is the ligament injury that is more common. Prevalence of ligament injury, incidence of ligament injury is more common because ligaments are found around the joint, and joints are actively engaged in dynamic action, and that dynamic action is brought about by the contraction of the muscles. So muscle and ligament injury comprise bulk of the sports injuries. Now coming on to the ankle injury, how we are going to learn about the rehab of ankle sprain. Before that, what is ankle sprain? We are going to discuss about it in brief. Ankle injury is very common. It is a major weight bearing joint of lower extremity, and it gets often injured in running and jumping, hurdling, sprinting, all such activities. It gets injured where there is a lot of cutting movements, sudden change in direction. All such movements do occur. Then ligament around the ankle, and particularly the ligaments found on the outside of the ankle, gets injured compared to the ligaments found on the medial side of the ankle joint. So ankle injury is very common.
The inversion type of ankle sprain is more common. As I told you already, it is seen in almost 85% of the patients, or most of the bulk of the sprains are inversion sprain. When in the process of spraining the ankle gets inverted. There is a sudden invertive force upon the ankle, and ankle sustains the injury of the ligaments found on the lateral aspect of the ankle joint. 30 to 70% of population experiences chronic instability due to inadequate rehabilitation, because either rehabilitation is inadequate or patient is not a compliant and exercises are prematurely stopped and game is resumed early. So all these things could lead to chronic instability. Now ankle rehab should be done slowly, as all the rehabilitation should be done very slowly, because you cannot hasten the process of healing and recovery. So the process of exercises and process of rehab also cannot be hastened. So it should be done slowly, carefully, under the supervision of a physiotherapist, preferably. Now, in this picture, you are seeing a normal leg and ankle joint. This is the lateral ligaments on the lateral side, and this is the ligament on the medial side. On the lateral side, there are three common ligaments. One is anterior talofibular ligament. There is a talus bone, and there is a fibula bone. This one is the fibula, this is a tibia. So, and here is talus bone. So anterior talofibular ligament is here on the anterior side. Posterior talofibular ligament is on the rear side, that is not seen in this picture. And then there is another ligament on the lateral side, there is a calcaneofibular ligament, that is on the sides. So this is the position of the ligaments on the lateral side, and there is a one ligament on the medial side. There is a medial ligament called medial ligament or deltoid ligament also. So since medial ligament injury is quite less, more often it is the lateral ligaments which are prone to injury because of sudden eversion of the foot while running or jumping or faulty landing on the ankle. So this could lead to the injury to the ligaments. Now, the mechanism has been shown. Sudden inversion may lead to the injury to the ligaments found on the lateral side. Sudden eversion may lead to the injury to the ligaments found on the medial side. Now, what happens? Clinical presentation is with inversion, or patient presents either with inversion type of sprain or eversion type of sprain. And the symptoms are more or less same. There could be pain, there could be swelling, there could be tenderness on the affected side. There is difficulty in weight bearing. Patient may not be able to walk properly, might be limping. Patient may give the history of previous episodes of ankle sprain, ankle instability also. If it is a case of recurrent ankle sprain, then passive inversion or plantar flexion with inversion should replicate symptoms for lateral ligament. अगर टेस्ट करेंगे और पैसिवली जो है टेस्ट करके इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन करेंगे इन्वर्जन में, तो ये सिम्टम्स पेन बढ़ जाएगा और वो सजेस्ट करेगा कि लैटरल लिगामेंट की इंजरी है. एंड पैसिव इन्वर्जन में रेप्लिकेट द सिम्टम्स फॉर मीडियल लिगामेंट, तो उससे पता लग जाएगा कि लिगामेंट मीडियल साइड का लिगामेंट इंजर्ड हुआ. Ankle sprain could be mild, moderate or severe depending upon the damage to the ligament tissue. Now, what could be the first aid? Mild ankle sprain resolves within 2 to 3 weeks because it could be just mere stretching of the ligaments or fibers might be damaged. So what we need to do, we need to give first aid promptly, no matter what is the grading. We are not to be indulged in any kind of grading or diagnosis as a coach. We are there on the field. We have to promptly address the problem by providing first aid. And first aid price regime for 2 days at least
P stands for protection from further injury, R stands for rest to the affected part, I stands for icing for 3 to 4 times for 20 minutes, C stands for compression of by in the form of crepe bandage, etc. And there could be other ways of, I'm not going to elaborate upon there. And elevation above the heart level, so that whatever the swelling or the joint effusion that has taken place, that should be placed above the heartlet, so that will be drained with the help of gravity back to the main circulation. Now, moderate and severe ankle sprain present with the instability also, and that is present in the case of mild ankle sprain, and there is a more profound swelling. Okay. अब अर्ली स्टेज में, जिसको हम एक्यूट स्टेज भी कह देते हैं, एक्यूट स्टेज अर्ली स्टेज में क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? प्राइस मैंने बता दिया 2 दिन। साथ में अगर आपके पास क्रायो कंप्रेशन का तरीका है वो भी कर सकते हैं आप। क्रायो कंप्रेशन की मशीन है, उसके साथ भी क्रायो कंप्रेशन दिया जा सकता है। मेडिकेशंस, दवाइयां जिसमें नॉन एनाल्जेसिक्स जो पेन किलर होते हैं जिनको कहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स जिसमें मोस्टली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। ऐसी दवाइयां नहीं देते खिलाड़ियों को जिसमें स्टेरॉयड होता है, नहीं तो खिलाड़ी डोप पॉजिटिव हो जाएंगे जो है। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये कोई दवा खाने के पहले भी आप सुनिश्चित करिए कि उसमें स्टेरॉयड तो नहीं है या कोई बैंड सब्सटेंस तो नहीं है जिसको हम खा नहीं सकते हैं। तो medications such as non-steroidal analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs पेन और swelling को कम करने के लिए देते हैं। फिजियोथेरेपेटिक मॉडलिटीज भी दे सकते हैं, वो वही काम करती हैं एक्सटर्नली जैसे दवाइयां अंदर से करती हैं। एंकल टेपिंग सपोर्ट के लिए देते हैं, जिससे कि सपोर्ट हो जाए तो थोड़ा दर्द कम हो जाएगा जो है, और उसके ऊपर आइसिंग और ये सारा कुछ कर सकते हैं। एंड रेस्ट टू द इंजर्ड पार्ट, उस पार्ट को रेस्ट दिए बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला, तो उस पार्ट को रेस्ट देना है। एंकल ब्रेसेस की भी जरूरत पड़ सकती है अगर चलने हलने में थोड़ा बहुत, जो बेयर मिनिमम, वैसे तो चलना अलाउड नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी बेयर मिनिमम जहां कहीं भी चलना पड़े एक्यूट स्टेज में तो थोड़ा ब्रेस लगा लें, चलना फिरना इजी। वॉकिंग फ्रेम की जरूरत पड़ती है, वॉकर की जरूरत पड़ती है, एक स्टिक की जरूरत पड़ती है, और स्टिक की जरूरत पड़ती है, और एक्सरसाइजेस अनअफेक्टेड पार्ट ऑफ बॉडी सच एज अपर बॉडी वर्कआउट एटसेट्रा, ये सब हम प्लान करके रखेंगे, क्योंकि खाली इंजर्ड पार्ट की तरफ नहीं हमें ध्यान देना है, हमें जो अनइंजर्ड हेल्दी पार्ट है उसका भी इंतजाम करना है। वो मैंने आपको बताया है जनरल प्रिंसिपल्स कि हमने सारी पेशेंट को एज ए होल देखना है, हमने खाली उसकी इंजरी की तरफ ही नहीं ध्यान रखना। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जनरल कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस, ये सारी कुछ हमने करना। नाउ 2 दिन के बाद हम कंट्रास्ट बाथ, आइस की बजाय हम कंट्रास्ट बाथ शुरू कर सकते हैं, जिसका सिस्टम ऐसे होता है कि पानी लगभग 10 डिग्री ठंडा रहे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और गर्म पानी करीब 40 डिग्री के आसपास या इतना रहे, जिसमें मतलब गुनगुना पानी रहे या गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा रहे, जिसमें पेशेंट पैर डाल के हाथ डाल के डिप करके रहे, तो उसको मतलब जो है अनबेरेबल ना हो, इट शुड बी कंफर्टेबली वार्म। और जैसे दांतों में लगने वाला ठंडा पानी होता है वैसा चिल्ड वाटर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रोक्सीमेट जो है हम 50% आइस और 50% वाटर के कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। तो कंट्रास्ट बाथ 2 बाल्टियों में पानी लेके भी बनाया जा सकता है, जो अगर कंट्रास्ट बाथ की मशीन नहीं तो। इसमें 1 मिनट ठंडे में पहले डालेंगे, फिर 3 मिनट गर्म में डालेंगे। ये 1 सेट हो गया, ऐसे 5 सेट करेंगे और ये 20 मिनट तक इलाज चलेगा। हीट मसाज, ये सब अर्ली स्टेज में जो हार्म का प्रोटोकॉल है वो सारा कुछ हम फॉलो करेंगे। नाउ गोल्स ऑफ रिहेबिलिटेशन, पेन कम हो गया हमारा, हमने दवाइयां खा ली, हमने फर्स्ट एड कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, मॉडलिटीज फिजियोथेरेपी की हमने, साथ ही वो भी डॉक्टर, पहले तो हमें डॉक्टर को भी दिखाना है, फिजियोथेरेपिस्ट जो भी है उसके सलाह से फिर आगे जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है जिसमें मॉडलिटीज भी लग रही हैं, पेन फर्दर कम हो रहा है, तो अब रिहेबिलिटेशन पे हम आ जाते हैं, जो रिहेबिलिटेशन के माध्यम से हमें फिटनेस हासिल करनी है। पहला गोल तो हमारा काफी हद तक पूरा हो गया,
तो रिहैब जो है इनिशियल स्टेजेस में थोड़ा सा करना मुश्किल होता है क्योंकि पेन होता है, तो पहले हमने पेन को टैकल कर लिया। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट गोल्स? अब हम रिहैबिलिटेटिव फेज में आ गए, तो वी हैव टू रिकवर द फुट एंड एंकल फंक्शंस। ये हमारा एम होगा कि फुट और एंकल फंक्शंस को जल्दी से जल्दी रिकवर किया जाए, उनकी रेंज ऑफ मोशन को रिकवर किया जाए, स्ट्रेंथ को लूज ना होने दिया जाए और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, ताकि अगर एंकल स्टेबिलिटी बढ़ जाए और एंकल अनस्टेबल ना रहे जाए। वेट बेरिंग कैपेसिटी एंकल जॉइंट की बढ़ाई जाए। ये नहीं कि शुरू में हम दिक्कत होती है तो पंजे पे चलते हैं और पूरा एड़ी पूरा पैर नहीं लगता, एंटाल्जिक गेट होता है हमारा, वो एंटाल्जिक गेट के बजाय हम फुल पैर पे वेट बियर कर सकें, तो ये एम होना चाहिए। बैलेंस और जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन, ये एक्सरसाइजेस भी हमें करानी है, एजिलिटी बढ़ानी है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सब कुछ करना है और पेन स्वेलिंग तो कम करनी है। तो मेथोडोलॉजी एंकल रिहेबिलिटेशन की क्या है? वैसे ही है जैसे बाकी हमने जनरल रिहेबिलिटेशन में बताया, यहाँ सिर्फ आपको मेंशन करते हैं। Strength to be achieved by various methods, various types of exercises, isometric, isotonic and isokinetic. Progressive resisted exercises, फिर इसके बाद हम डालेंगे पेशेंट को, पहले इनिशियली दर्द होगा तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस इजीली टॉलरेट हो जाएंगे, फिर इसके बाद जब थोड़ा थोड़ा दर्द कम होता है, पेशेंट आइसोटोनिकली थोड़ा मूव कर सकता है, तो उसको फुल रेंज एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं, या विद इन लिमिट्स ऑफ रेंज, लिमिट्स ऑफ पेन के रेंज में हम एक्सरसाइज करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो भी पेशेंट कर सकता तो अच्छी बात है। और अगर आइसोकाइनेटिक मशीन है, या हमने वैसे मेंशन कर दिया, ये कई एक्सरसाइजेस आइसोकाइनेटिक मशीन पे भी हो सकती है, अगर वो मशीन अवेलेबल है तो उसकी भी मदद ली जा सकती है। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज, अगर पेशेंट फ्री एक्सरसाइज करने की स्थिति में है, फ्रीली एक्सरसाइज कर सकता है, तो हम फिर प्रोग्रेसिव रेजिस्टेड एक्सरसाइज पे पेशेंट को डाल देते हैं। इसमें धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है हम लोडिंग करते हैं, आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो, ऐसे धीरे धीरे हम वेट बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ाते हैं, जैसे एक्सरसाइज थेरेपी में बताया, नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेसिवली हम एक्सरसाइज को मुश्किल बनाते जाते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है अगर रेंज प्रॉपर नहीं है। कई दफे इनिशियल इंजरी में मसल स्पैज्म बहुत ज्यादा होता है, वहां पे पेशेंट का फुल रेंज मूवमेंट नहीं होता, तो हम पैसिवली थोड़ा सा रेंज को हासिल करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि रेंज पहले प्रॉपर हो जाए तो फिर स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना इजी हो जाएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, जो सराउंडिंग मसल्स हैं एंकल जॉइंट के, उन मसल्स को हम स्ट्रेच करेंगे, लेकिन हम इन्वर्जन को साइड की मसल्स, जो बाहर के साइड की मसल्स है पेरोनियाई हैं, उनको नहीं स्ट्रेच करेंगे। अगर हम उनको स्ट्रेच करेंगे तो फिर हमें दिक्कत आएगी। सिर्फ प्लांटर फ्लेक्सर्स और डॉर्सी फ्लेक्सर्स को तो स्ट्रेच कर सकते हैं, और दूसरी मसल्स को हम नहीं स्ट्रेच कर सकते, स्पेशली पेरोनियाई मसल्स को जो लेटरल कंपार्टमेंट में लेग के होती हैं, उनको हम नहीं स्ट्रेच करेंगे, नहीं तो फिर हमारा जो हीलिंग है वो लेटरल लिगामेंट्स में जो इंजरी है फिर हीलिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेस के माध्यम से एंकल में बैलेंस को हम प्रमोट करते हैं, जिससे कि बैलेंस जो है हमारा पहले जैसा हो और पेशेंट को कॉन्फिडेंस हो कि अब ऊंचा नीचा पैर पड़ेगा तो उसको ये अंदेशा नहीं है कि उसका पैर दोबारा से ट्विस्ट होने जा रहा है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस के माध्यम से सारी मसल्स एंकल पे जो काम करती हैं उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ाई जाएगी, और उसमें लो वेट और हाई रेपिटेशंस के माध्यम से एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस का जो सिद्धांत है कि मसल्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ाइए, रेजिस्टेंस थोड़ा रखिए और रेपिटेशन ज्यादा रखिए। एजिलिटी ड्रिल्स के माध्यम से चपलता, चुस्ती फुर्ती एंकल की, भागने दौड़ने की, जैसे मैंने बताया कि कोर्ट में भागना है, आगे भागना, पीछे भागना, तो ये सब अगर आपका गेम ऐसा है तो एजिलिटी ड्रिल्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसको हम फॉरवर्ड रनिंग, बैकवर्ड रनिंग, साइडवेज रनिंग, जिग जैग रनिंग, स्पाइरल, जो भी है, सडन स्टार्ट, स्टॉप रनिंग, रनिंग एट कमांड्स, तो ये सारे के माध्यम से हम एजिलिटी को बढ़ाते हैं। फंक्शनल एक्सरसाइजेस के माध्यम से जो गेम का हमारा वो है, हम उसको वो करते हैं, गेम की जो हमारे एक्शंस हैं हम उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, और फर्दर गेम स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग के लिए कोच के पास रेफर करते हैं। अब कुछ सैंपल एक्सरसाइजेस हमने जीआईएफ के माध्यम से
दिखाने की कोशिश की है। ये सैंपल एक्सरसाइजेस में आप देखिए कि ये पेशेंट, अच्छा ये चीज, एक चीज समझने की जरूरत है कि यहाँ पे जो हम एक्सरसाइजेस आपको दिखाएंगे यही एक्सरसाइजेस नहीं है जो हम पेशेंट को करा सकते हैं। हम शुरू में जैसे हमने बताया कि आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कराएंगे, तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज नहीं है, पहली बात ये आइसोटोनिक एक्सरसाइज है। लेकिन ये अगर पेशेंट कर सकता है तभी हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज करवाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, ये एक्सरसाइजेस जितनी हैं वो सिर्फ एक इंडिकेटिव है एक्सरसाइजेस, बहुत तरह के परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस एक्सरसाइजेस के यूज होते हैं और उसमें ये कुछ हम आपको एक नमूने के तौर पे दिखाएंगे। ये चीज देखिए पेशेंट, अच्छा एक चीज और है कि एंकल की एक्सरसाइजेस को हम वेट बेयरिंग, पहले नॉन वेट बेयरिंग में, फिर जैसे जैसे कंडीशन इंप्रूव होगी तो पार्शियल वेट बेयरिंग में और फिर फुल वेट बेयरिंग में भी हम करा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि पेशेंट एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन और डार्सी फ्लेक्शन बिल्कुल आराम से बैठा हुआ और वो कर रहा है, और ये करने में वो सक्षम है, इसलिए हम उसको ये एक्सरसाइज करा रहे हैं। अगर उसको ये भी करने में दिक्कत होती तो हम उसको पीछे ले जाते, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करवाते। इस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के माध्यम से पेशेंट जो है कंफर्टेबल होता और उसकी क्षमता बढ़ती और बाद में फिर इधर लेके आएंगे। तो ये इनिशियली देखा जाएगा, इनिशियली हम उसको आइसोमेट्रिक्स और इसके बाद आइसोटोनिक पे ले आएंगे। ये हमने रूल को नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे हम आइसोटोनिक एक्सरसाइज करा रहे हैं, तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। These are some sample exercises being done in non-weight bearing positions. Now this is plantar flexion. This is non-weight bearing inversion. I think GIF is a bit frozen here. This is non-weight bearing eversion. The patient is everting the foot outside. This is isometrics. अब शुरू में अगर वो एक्सरसाइज करने में दिक्कत है तो आइसोमेट्रिक्स पे आ जाएंगे। तो अब ये आइसोमेट्रिक्स में पेशेंट देखिए अंदर को जोर लगा रहा है और ये इन्वर्जन की मसल्स को इन्वर्जन की मसल्स को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। अब ये इवर्टर मसल्स हैं जो हमारे पेरोनियाई ग्रुप ऑफ मसल्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए ये आइसोमेट्रिक्स दी जा रही है बाय इवर्टिंग द फुट। ना थेराबैंड के माध्यम से अब हम रेजिस्टेंस पे डाल देते हैं पेशेंट, अब क्षमता उसकी आ गई है इतनी, आइसोमेट्रिक्स में कंफर्टेबल है, आइसोटोनिक फ्री नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस में कंफर्टेबल है, तो अब हम उसको रेजिस्टेड डार्सी फ्लेक्शन, देखिए ये थेराबैंड बांध करके और कैसे हम डार्सी फ्लेक्शन करवा रहे हैं। तो ये कुछ सैंपल है, ऐसे नहीं है कि और कोई तरीके से आप वेट कफ बांध के भी करवा सकते हैं, आप जैसे आप एंकल एक्सरसाइज की मशीन पे भी करवा सकते हैं, तो कुछ भी तरीके से आप करवा सकते हैं। बहुत सारे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, these are the exhaustive list and there are some sample exercises just to provoke some thought in your mind so that we just have a feel of it, how the rehabilitation process is going on, how the patient's capability is built again so that he reaches to his pre-injury level of fitness again. Now in this GIF I am trying to show the resisted plantar flexion. Patient is holding the TheraBand and resisting the plantar flexor group of muscles, that is calf and calf group of muscles. Now the inversion with TheraBand, slightly angling the TheraBand, the patient is trying to resist the inverters. Now if this movement is painful, then please be careful, don't add resistance to the inverters. You just leave it, you can perform only free exercises. If adding resistance causes pain, don't do this or any movement for that reason, because the ligaments, if it is a lateral side of ligament that are hurt, so this exercise could be damaging also. So it is all, that's why I'm saying don't force any exercise, just be guided by physiotherapists who will be in a better position to tell you what kind of exercises
is tolerated by the patient and is good for the patient. Now, similarly, with TheraBand, you can resist the everters, the plantar flexor group, the peronei group of muscles, which are found on the lateral aspect of the leg. Now, partial weight bearing position में patient is seated, पूरा body weight कुर्सी पे है. अब patient अब देखिए बैठा आराम से अपने टिप टो स्टैंडिंग कर रहा है, अपने पंजों पे भार डाल रहा है और वापस आ जा रहा है. पार्शियल वेट बेयरिंग एक्सरसाइज है, हल्की हल्की. इस एक्सरसाइज में उसको ये दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर डिफिकल्ट कंपेयर टू द नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जो हम लेट करके कर रहे थे शुरू में. अब इसमें पार्शियल वेट बेयरिंग स्टैंडिंग में पार्शियल वेट बेयरिंग एक टांग पे वेट डालते हैं, फिर जो अफेक्टेड टांग पे वेट डालते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर नीचे रख देते हैं. तो ये पार्शियल वेट बेयरिंग स्टैंडिंग पोजीशन में ये एक्सरसाइजेस कराई जा रही हैं और इसमें वेट शिफ्ट कर रहे हैं. फुल वेट बेयरिंग सिंगल लेग स्टांस. फुल वेट बेयरिंग स्टैंडिंग काफ रेजेस. पूरा वेट डाल दिया है उस लेफ्ट एंकल पे जिसमें इंजरी है और पेशेंट जो है इसमें टिप टो एक्सरसाइज कर रहा है. फुल वेट बेयरिंग इन लैटरल स्टेपिंग. अब देखिए लैटरल साइड पेशेंट स्टेप कर रहा है, एक स्टेप बढ़ाया, बीच में टॉवेल रखी है, उधर रखा, फिर इधर रखा. तो बारी बारी से इसके माध्यम से कोऑर्डिनेशन और बैलेंस की भी ट्रेनिंग साथ ही साथ हो रही है. सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है. देयर इज ए हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द affected side and unaffected side. There is a equal use that is being promoted with this kind of exercise also. Beside strengthening, तो जो हम करा रहे हैं सो कराइए. Full weight bearing lateral jumps. Now this is advanced exercise. When patient has the capability to take full load, then this can be added further to increase the डिफिकल्टी ऑफ द एक्सरसाइज. एक्सरसाइज को फर्दर अब हमने मुश्किल बना दिया. अब ये बैलेंस के लिए देखिए टॉवेल है. अब आप कहेंगे बड़े बड़े फैंसी गैजेट्स नहीं हैं, स्टेबिलिटी ट्रेनर पैड्स नहीं हैं, एंकल के लिए एंकल बैलेंस बोर्ड्स नहीं है, वोबल बोर्ड्स नहीं है. टॉवेल फोल्ड करके रख दिया हमने, एक अनस्टेबल सरफेस बना दिया और उस पे ही जो है हम एक टांग पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करें. तो कुछ भी तरीका हो सकता है. तो ये जो हमने दिखाया ये सारा कुछ एक सैंपल एक्सरसाइजेस थी जो हम हैमस्ट्रिंग एंकल के रिहेबिलिटेशन में हम प्रयोग करते हैं. इन नटशेल क्या होता है कि जब कभी चोट लगती है तो हमें फर्स्ट एड देना है. फर्स्ट एड देने के बाद फिर इसके बाद डॉक्टर को दिखाना है. डॉक्टर को जरूरत होती है तो वो अपने प्रॉपर एक डायग्नोसिस के लिए चाहे एक्सरे करा सकता है, एमआरआई करा सकता है अगर उसको जरूरत लगती है, या कुछ दिन आपको ट्रीटमेंट देके नहीं ठीक होता है तो एक्सरे एमआरआई पे जा सकता है और एक प्रॉपर डायग्नोसिस बना करके फिर इसके बाद साथ ही साथ आपको मेडिसिन दी जाती है जिससे मेडिसिन से आपका दर्द कम हो. और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी आपको प्रेस्क्राइब कर दी जाती हैं कि वो मॉडलिटीज आप डेली लीजिए. फिजियोथेरेपिस्ट आपको कुछ एक्सरसाइजेज स्टार्ट करता है. जैसे जैसे आपका पेन इनकम होता है तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, आइसोटोनिक एक्सरसाइज, ये सब के माध्यम से धीरे 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 आपकी मूवमेंट को इनिशिएट किया जाता है, चालू किया जाता है. और जैसे जैसे आपके रेस्पॉन्स अच्छा आता जाता है और आपकी एक्सरसाइज की टॉलरेंस बढ़ती जाती है, फिर इन्हीं एक्सरसाइजेस को हम मुश्किल बनाते हुए उस लेवल पे लेके आते हैं. और वो सारी सैंपल एक्सरसाइजेस जो हमने दिखाई हैं उसी तरह से एक्सरसाइजेस को हम नॉन वेट बेयरिंग, पार्शियल वेट बेयरिंग और फुल वेट बेयरिंग में कर सकते हैं. ठीक है. और हमने ये भी दिखाया कि हमारे जो गोल हैं वो वही हैं कि हमने एंकल के चारों तरफ जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हमने जॉइंट रेंज ऑफ मोशन फुल करना है. लेकिन ध्यान रहे अगर लैटरल लिगामेंट की इंजरी है तो वो रेंज ऑफ मोशन को फुल करने की जल्दी नहीं करनी है, धीरे 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 धीरे. लास्ट में जो हमारी इंजर्ड साइड है यानी लैटरल साइड है वहां की जो मसल्स हैं और उनको हमने पूरा ओवर स्ट्रेच नहीं कर देना, नहीं तो हीलिंग डिस्टर्ब होगी. थोड़ा आराम आराम से चलना. बाकी जो 3 साइड की मसल्स हैं, प्लांटर फ्लेक्सर्स, डार्सी फ्लेक्सर्स और अंदर को जो इवर्टर्स हैं, उनकी हम
ज्यादा फोकस करेंगे और इन्वर्टर्स को थोड़ा बचा बचा के करेंगे, क्योंकि हमने हीलिंग को नहीं छेड़ना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरह से करते 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 स्ट्रेंथ आ गई, रेंज ऑफ मोशन आ गया। फिर इसके बाद हमने थोड़ा बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्टिव ऐड कर दिए, क्योंकि बैलेंस और प्रोप्रियोसेप्शन की बहुत जरूरत पड़ती है, बिना इसके पेशेंट रिहेबिलिटेट नहीं होता। जैसे ये जंप्स हम दिखाए थे, तो इससे क्या होता है, हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइजेस के माध्यम से पेशेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड का बराबर एक सिंक्रोनाइज यूज करता है। तो ये सारे चीजें बहुत जरूरी है मसल जो है उसके लिए। और फिर धीरे धीरे हम एजिलिटी और ये समाज, क्योंकि पेशेंट जिस तरह का गेम होगा तो नेचुरली ये सारी चीजें उसकी गेम की जरूरत को ध्यान में रखते हुए उस तरह की फंक्शनल एक्सरसाइजेस भी ऐड करेंगे, उस तरह की उसकी रिहैब में थोड़ा बहुत स्लाइट मॉडिफिकेशन करके हम पेशेंट को उस लेवल पे ले आएंगे कि जहां पेशेंट ये कहेगा कि नहीं, अब हमें कोई दर्द नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई हैव फुल I don't have any pain, my muscles and my fitness is almost okay। तो फिर आप उसको तब आप गेम में जाने के लिए और फर्दर गेम में स्किल ट्रेनिंग के लिए कोच के पास आप कहेंगे कि आप जाके गेम की बेसिक्स को दोबारा से रीलर्न करो और फिर धीरे धीरे अपने गेम में हैबिचुएट हो, क्योंकि बहुत समय से आपने गेम नहीं खेली हुई है। तो ये सारा एक कंसेप्ट है ना। अब हम, जैसे हमने बताया कि हैमस्ट्रिंग मसल बहुत कॉमनली इंजर्ड होती है, तो हैमस्ट्रिंग मसल is a group of muscle. There are three groups, three muscles. On the outer side it is biceps femoris, then semitendinosus and semimembranosus. Action of this hamstring group of muscle is knee flexion, and it also aids in the hip extension along with the gluteus maximus, which is the prime mover for the hip extension. Now this hamstring muscle is quite important muscle in field sports, where a lot of running, jumping, sprinting, hurdling, etc. is undertaken. So hamstring is a very, very important muscle, and because of this property it is known as athlete's muscle, क्योंकि भागने दौड़ने का काम एथलीट का है और एथलीट के लिए सबसे important muscle यही है. In this picture there is a sudden catch in the hamstring and patient is grabbing the area where she has sustained muscle injury. Now अब ये देखिए हैमस्ट्रिंग मसल की एनाटॉमी, ये पोस्टीरियर थाई है और कुछ पार्ट लेग का है, ये नी जॉइंट है, ये बाहर से देखिए बाइसेप्स फेमोरिस, ये सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस, ये 1 2 3 तीन मसल्स हैं और तीनों मसल्स मिल करके ये थाई के पीछे जो है मसल का पूरा बल्क बनाती हैं। तो बैक ऑफ थाई में जितनी मसल्स हैं सब पूरा जो एरिया है यही सारा एरिया कवर करती है, इन्हीं को हम हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। नाउ नीचे ये काफ मसल है जो गैस्ट्रोक्नीमियस और इसी में सोलियस मसल जाती है, तो हमें उसके बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ हैमस्ट्रिंग के लिए। अब हैमस्ट्रिंग मसल इंजरी, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन, जैसे सभी मसल स्ट्रेन की ग्रेडिंग करते हैं 1 2 3, इसकी भी ग्रेड है, ग्रेड 1 माइल्ड इंजरी, ग्रेड 2 मॉडरेट इंजरी, ग्रेड 3 सीवियर इंजरी। माइल्ड इंजरी में क्या होता है कि देयर इज अ टियर ऑफ फ्यू मसल फाइबर्स एंड इट कुड प्रेजेंट एज अ डल एक, कोई नॉट नेसेसरली कि कोई वहां पर क्लियर कट पेशेंट कहे कि नहीं कोई मसल इंजरी हो ही गई है, तो उसको खुद भी नहीं पता होगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इट कुड प्रेजेंट एज अ डल एक एंड मसल टाइटनेस। कई दफे पेशेंट मसल टाइटनेस में सर मसल टाइट है, हो सकता है उसको भी नहीं समझ आ रहा हो और हो सकता है उसकी टाइटनेस कहने की वजह से हम लोग भी गलती करते हैं, हम लोग भी उसको मसाज कराएं, मसाज कराओ इसकी टाइटनेस कम हो जाएगी। तो देयर कुड बी ए मिक्स्ड पिक्चर, इट इज वेरी क्रूशियल। अर्ली स्टेजेस में हम लोग कई दफे ओवरलुक भी कर सकते हैं। तो इट कुड प्रेजेंट एज अ डल एक and muscle tightness, minimal pain, swelling and loss of strength may be there, may not be there, may not be there also, because
जैसे मैंने कहा ना डल एक है, डल एक को आप क्या कहोगे, आप उसको डिफाइन करना के फिर मुश्किल हो जाता है। कहीं दफे लॉस ऑफ स्ट्रेंथ हो भी नहीं सकती, नहीं भी हो सकती ये, क्योंकि ग्रेड 1 में कुछ ऐसा नहीं होता बहुत ज्यादा सीरियस कि आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। नो डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलना फिरना सामान्य रहता है। लेकिन जब पेशेंट से कहोगे थोड़ा दौड़ दो तो कहते हैं, वो खुद ही कहेगा, आपको हिस्ट्री लोगे आप डिटेल में, खुद ही बताएगा कि दौड़ने पे कहता है कि रुकना पड़ता है, दौड़ नहीं पाता। तो इस तरह की मसल इंजरी हैमस्ट्रिंग को आप ग्रेड 1 कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो ग्रेडिंग है ना, ये ग्रेडिंग का काम बड़ा झमेले वाला है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। हमें ग्रेड से मतलब नहीं है इतना ज्यादा, जितना हम उसकी सीवियरिटी को मैनेज करें। अगर सीवियर नहीं है तो बाकी ठीक है, सारी चीजें ग्रेड 1 ग्रेड 2 कुछ भी है, हम सब मैनेजेबल है। तो बहुत ज्यादा इसकी ग्रेडिंग के चक्कर में नहीं आना। एक ब्रीफ इंडिकेटिव ये आइडियाज है, इन सब ओवरलैपिंग फीचर्स हैं, एंड इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग आल्सो। सो there could be no difficulty in walking, but running is a bit problematic. Now, grade 2 injury is a moderate injury. There is a greater degree of damage to the muscle, and pain, swelling, and clear-cut muscle weakness is there. तो पेशेंट जो है वो सामान्य चाल नहीं होती उसकी, वो हमेशा लंगड़ा के चलता है। तो जब लंगड़ा के चलेगा तो दूर से ही नोटिस हो जाएगा, और आप कह सकते हैं कि ये तो ग्रेड 1 से तो ऊपर ही है। ग्रेड 3 सीवियर इंजरी है, कंप्लीट टीयर है मसल का, और द टीयर इज अक्रॉस द होल क्रॉस सेक्शन ऑफ मसल लीडिंग टू टोटल लॉस ऑफ मसल फंक्शन। बहुत सी पेन स्वेलिंग होगी, मसल वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, पेशेंट बिना क्रचेस के उसके चल ही नहीं सकता है वॉक करके। तो ये सारा जो है ये ग्रेड 3 मसल इंजरी के लक्षण है। देखिए, सीवियर मसल स्ट्रेन, देयर इज ए लॉट ऑफ ecchymosis under the skin, collection of blood under the skin, sudden। अच्छा, ये होता कैसे है नॉर्मली, ये बड़ा पेशेंट सीधी सीधी हिस्ट्री देगा कि हम कुछ कर रहे थे और कभी कुछ हो गया, यानी दौड़ रहे थे, जंप लगा रहे थे, स्प्रिंट कर रहे थे, हर्डल कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और सडन फोर्सफुल जो है मसल का कंट्रैक्शन हुआ और इसके बाद ये पेन आ गया। There could be imbalance of muscle strength ratio between hamstring and quadriceps with a low hamstring muscle strength compared to the quadriceps ratio। तो यानी हैमस्ट्रिंग ज्यादा वीक है क्वाड्रिसेप्स की तुलना में, इसलिए उनमें असंतुलन है वो ताकत का, और ये ताकत का जो असंतुलन है वो इस इंजरी को प्रीडिस्पोज करता है। हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, जैसे मैंने बताया, पेशेंट विल बी प्रेजेंटेड विद द सिम्पटम ऑफ हैमस्ट्रिंग टाइटनेस, और हम उसको थोड़ा शक की निगाह से देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको हैमस्ट्रिंग इंजरी हो रही है या हो चुकी है। प्रेजेंस ऑफ सिग्निफिकेंट मसल फटीग, बहुत ज्यादा मसल फटीग है और हम उसमें भी उसको काम ले रहे हैं, उससे उसको इंजरी हो सकती है, उसको रेस्ट और रिलैक्सेशन जरूरी है, नहीं तो फिर इंजरी हो सकती है। इनसफिशिएंट वार्म अप पेशेंट कई दफे करता है और सीधे खेलने लगता, भागने लगता, दौड़ने लगता है, स्प्रिंट लगाने लगता, मसल इंजरी ऐसे में हो सकती है। There is a premature return to sports without completing rehab and without getting a nod from the doctor or attending physio। आप सीधे खेलना शुरू कर देते हैं, वो भी गलत है, उससे भी जल्दी चोट लगने की संभावना है। और there could be presence of previous injury, we do not get treatment for that and we rather continue to play। तो पेशेंट बहुत तरह से प्रेजेंट हो सकता है, बहुत तरह से आपको बताएगा और आपको हिस्ट्री में और उसमें पता लगेगा कि क्या वजह है हैमस्ट्रिंग इंजरी की। ट्रीटमेंट जैसे उसका बताया हमने आपको, सभी का फर्स्ट एड है, एक ही है, प्राइस या राइस, और साथ में हम 2 दिन तक ये करेंगे और इसके बाद डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि डायग्नोसिस भी जरूरी है। हमें नहीं पता है कि ये है क्या, लिगामेंट इंजरी है, मसल इंजरी है, या फ्रैक्चर है, या कुछ और है, तो रेफर जरूर करेंगे। अपना ही दिमाग नहीं लगाते रहेंगे कि सब हम ही ने मैनेज कर लेना, ऐसा नहीं करना।
There could be after price, you are seeing a doctor. Now doctor is advising medications. At the same time, if need be, he is putting you on some investigations. Ice is applied for 20 minutes and initially ice application में ठंडा लगेगा, बाद में धीरे धीरे वो हम बियर कर लेंगे वो ठंडे की फीलिंग को और वो जगह फिर नम हो जाती है, 20 मिनट में नम हो जाती है। तो 20 मिनट से कम आइस बिल्कुल ना लगाएं। अगर कपड़े के ऊपर लगाएं, डायरेक्ट आइस भी ना लगाएं, ये भी चीज का ध्यान रखें। डायरेक्ट आइस लगाएंगे वो और इनटॉलरेबल होगा और स्किन बर्न हो जाएगा। आइस एलर्जिक्स लोग हैं, कोल्ड एलर्जिक्स लोग हैं, उनको पूछ लें, सोच समझ के लगाएं। तो आइस एप्लीकेशन के क्रायोथेरेपी के बहुत सारे कंट्राइंडिकेशंस हैं, वो डॉक्टर से पूछ के फील करें। अगर कुछ आपको एलर्जी है आइस और कोल्ड से तो पहले बता दें। फिर 2 दिन तक तो हमने ये कर दिया। उससे आइस लगाने से क्या हुआ कि हमारा पेन कम हो गया। जो पहले हाथ नहीं लगता था तो वहां हाथ लगने लग गया, यानी इसका मतलब टेंडरनेस कम हो गई। स्वेलिंग है वहां पे मसल में तो स्वेलिंग कम हो गई जो है। तो ये आइस के फायदे हैं। साथ ही साथ चलने फिरने में दिक्कत होगी तो वो चलने फिरने में दिक्कत भी आइस लगाने से कम हो जाए। तो आइस एक तरह से एक्सटर्नल पेन किलर है। आप आइस को हल्का ना समझें, इसको दिन में 3 से 4 बार 20-20 मिनट के लिए आप रिलीजियसली लगाएं और अगर बहुत ज्यादा है तो आप 2 घंटे में भी रिपीट कर सकते हैं, कोई उसमें नुकसान नहीं है। कई दफे प्लेयर को जल्दी तैयार करना होता है तो हम लोग एवरी 2 आवरली भी आइस को रेकमेंड कर देते हैं। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ कोई मतलब पेशेंट के लिए कोई खतरा है। फिर 2 दिन के बाद ठंडा गर्म पानी कंट्रास्ट बाथ जिसको कहते हैं 20 मिनट के लिए थर्ड डे से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें 1 मिनट कोल्ड और 3 मिनट हॉट हम 20 मिनट के लिए 5 टाइम्स दे सकते हैं। जो है पैसिव नी जॉइंट मूवमेंट्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एक्टिव मूवमेंट करने में पेशेंट को दर्द आता तो असेसमेंट के बाद पैसिव नी जॉइंट मूवमेंट्स कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक्स वेरिंग एंगल पे कर सकते हैं अगर पेन परमिट करता है। कई दफे आइसोमेट्रिक्स करने से पेन इलिसिट होता है क्योंकि हम पेन को चेक ही करते हैं, हैमस्ट्रिंग इंजरी को हम चेक ही करते हैं विद रेजिस्टेंस लगा के। तो अगर हम रेजिस्टेंस लगाएंगे और पेन होगा तो फिर हमें आइसोमेट्रिक्स नहीं एडवाइस करनी है। हम पैसिव नी जॉइंट की मूवमेंट से मूवमेंट इनिशिएट कर सकते हैं और जैसे जैसे पेशेंट की क्षमता बढ़ेगी तो फिर हम उसको दूसरी एक्सरसाइजेस पे डाल सकते हैं, असिस्टेड एक्सरसाइज पे डाल सकते हैं। पैसिव के बाद असिस्टेड एक्सरसाइज पे डाल सकते हैं। उस एंगल पे आइसोमेट्रिक्स करा सकते हैं जिस एंगल पे पेन नहीं है। तो इस तरह से आइसोमेट्रिक्स अलग अलग एंगल पे कराई जाती है और जिस एंगल पे कराई जाती है उसी एंगल पे ताकत बढ़ती है। तो हमें मतलब ये चीज ध्यान रहे कि अगर कोई भी मूवमेंट जो नी को अंदर को खींचता है, फ्लेक्स करता है, अगर सब में पेन आ रहा है तो हम आइसोमेट्रिक्स को अवॉइड करें इनिशियली तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Because we have to take care not to aggravate the pain and not to disrupt the healing also. Stretchings बहुत जरूरी है। अगर हैमस्ट्रिंग को ठीक करना है तो दिन में कई बार स्ट्रेचिंग्स, आइसोमेट्रिक्स, पैसिव नी जॉइंट मूवमेंट, असिस्टेड नी जॉइंट मूवमेंट्स, इन सब के माध्यम से हम कर सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस जिनमें हम रेंज को इंप्रूव करते हैं। हम अपने हाथों की मदद से रेंज को इंप्रूव कर सकते हैं अगर असिस्टेंस देने की जरूरत है। हम बैठे हैं टेबल पर बैठ करके और दूसरा पैर फंसा करके उससे भी थोड़ा असिस्टेड जो है हम नी फ्लेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं जिन तरीकों के माध्यम से हम इनिशियल एक्यूट अर्ली स्टेजेस में जहां पे पेन एक बहुत बड़ा हिंडरिंग फैक्टर है उसकी प्रेजेंस में हम एक्सरसाइजेस के माध्यम से मूवमेंट को इनिशिएट करेंगे। और जब पेशेंट को करना इजी हो जाएगा, पेशेंट को वो एक्सरसाइजेस टॉलरेट हो जाएंगी, तभी हम एक्सरसाइजेस को नेक्स्ट लेवल पे बढ़ाएंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ाएंगे। रिहेबिलिटेशन के बहुत सारे मेथड्स, जैसे पहले आपको बताया, ये इस दफे मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है क्योंकि मसल का मामला है। तो हैमस्ट्रिंग मसल की ताकत जब तक पूरी नहीं होगी तो उसका खेलना सामान्य नहीं होगा। तो इनिशियली कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जिसमें नी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, जैसे जैसे पेशेंट रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव मूवमेंट करने की स्थिति में आ गया तो फिर हम कंसेंट्रिक एक्सरसाइजेस पे ज्यादा जोर देते हैं जिसमें मसल्स जो है कंसेंट्रिकली वर्क करती हैं। फिर इसके बाद इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस वो थोड़ा ज्यादा उससे टफ होती हैं, उसको करते हैं।
और फिर इसके बाद हम जब फ्री एक्सरसाइजेस पेशेंट आसानी से कर सकता है, फिर इन्हीं सब कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक को वेट्स के साथ करते हैं। तो ये सारे तरीकों से हम स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। फिर मसल एंडोरेंस एक्सरसाइजेस, मसल एंडोरेंस एक्सरसाइजेस में कम वेट के साथ ज्यादा नंबर ऑफ रेपिटेशंस और ज्यादा नंबर ऑफ सेट्स के माध्यम से हम एक्सरसाइजेस को मतलब मसल्स की कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। बैलेंस एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लोअर लिम्ब की जितनी चोटें हैं, चाहे वो मसल में है, जॉइंट्स में है, अगर बैलेंस को नहीं शामिल करेंगे तो जो हमारा एक उस लिम्ब पे या उस मसल पे या उस जॉइंट पे जो एक भरोसा है वो भरोसा भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये जो बैलेंस एक्सरसाइजेज, जो जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन एक्सरसाइजेज भी कही जाती हैं, ये सारे प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हैं वो जॉइंट्स के अंदर होते हैं, मसल्स के अंदर होते हैं, स्किन के अंदर होते हैं। ये सब बॉडी के पोजीशन अवेयरनेस या पोजीशन सेंस को ये सेंस करते हैं और ब्रेन को सूचना देते हैं। तो अगर हम ये तरह तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे, डिसबैलेंसिंग एक्सरसाइजेस, जिसमें हम अपने को अनस्टेबल करते हैं, फिर अपने को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, बैलेंस करते हैं, अपनी इक्विलिब्रियम को बढ़ाते हैं, तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और हम तो ये सारी एक्सरसाइजेस, बैलेंस की एक्सरसाइजेस जो हमने पहले भी बताई हैं कि कैसे करते हैं, उन सारी एक्सरसाइजेस को एंकल बोर्ड्स पे, वोबल बोर्ड्स पे, सिंगल लेग स्टैंडिंग, टो स्टैंडिंग, हील स्टैंडिंग, जहां पे नैरो सरफेस पे या छोटे सरफेस पे हम करते हैं, फिर बाद में अपना मतलब जो है हाथ साइड में रख के करिए, फिर इसके बाद हाथ को फैला के करिए। बहुत सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं बैलेंस एक्सरसाइज को करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी सब एक्सरसाइजेस ग्रेडेड हैं और इनको हम एक क्लास में आपको समझा नहीं सकते ये कैसे की जाती है। ये सब एक्सरसाइजेस का एप्रोप्रिएट सिलेक्शन जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट को पता है, वो आपकी कैपेबिलिटी को पहले भांप लेगा और फिर आपको उसी तरह की एक्सरसाइजेस एडवाइस करेगा। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, आप चलना फिरना दौड़ना आपका मुश्किल है, स्विमिंग कर सकते हैं, आराम से बैठ के पार्शियल वेट बेयरिंग में स्टेशनरी साइकिलिंग अगर कर सकते हैं वो कर सकते हैं, बैठ करके कोई भी अपर बॉडी गेम खेल सकते हैं, जैसे बास्केटबॉल खेल लीजिए, कुछ कर लीजिए, प्राणायाम, योगा, कुछ भी करिए, लेकिन प्लीज माइंड इट, डोंट हर्ट योर मसल। फंक्शनल एक्सरसाइजेस के माध्यम से आप अपनी गेम रिलेटेड स्किल्स वो एडवांस रिहैब में आपको थर्ड स्टेज में इसको शामिल करेंगे। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और हैमस्ट्रिंग को बहुत तरीकों से स्ट्रेच कर सकते हैं। पेशेंट स्टैंडिंग में है तो भी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहा है और जो अफेक्टेड साइड है वो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही। आप दोनों हाथों को नीचे करें या जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बायलैटरल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर सकते हैं। हियर शी इज डूइंग द स्ट्रेच ऑफ द अफेक्टेड साइड ऑफ हैमस्ट्रिंग। तो आगे झुकने से हम दोनों साइड की हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये बैठे हुए हैं और बैठ करके इस तरह से अपने नी को टच कर रहे हैं हेड से, नोज से, तो ये आइसोलेटेड stretching of the hamstring muscle in sitting position. Similarly, you can stretch the hamstring muscle in lying also. लेट करके सीधी टांग ऊपर उठाइए और अपने हाथ से पकड़ करके उठाइए और जहां तक दर्द नहीं होता, ध्यान रहे कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पेनलेस रीजन में करनी है, पेनफुल होगी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे स्ट्रेचिंग हो, चाहे कोई भी हो। तो इफ इट इज हर्टिंग इट मींस कि इट इज डैमेजिंग समवेयर, सो डोंट डू दैट। अब यहाँ पे ये बायलैटरल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच कर रहे हैं, पैर फैला के बैठे हुए हैं, सीटेड विद लेग्स अपार्ट, कभी एक बार इधर झुकते हैं, एक बार उधर झुकते हैं, तो किसी भी तरीके से हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस विद असिस्टेंस यहाँ पे कर रहे हैं, अलग अलग एंगल बदल के या उस एंगल पे जिस एंगल पे पेन नहीं है उसमें कराया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली नीचे से लेके ऊपर तक इसी पोजीशन में हम टेस्ट भी करते हैं। तो कई दफे अगर इसमें हम आइसोमेट्रिक कराएंगे तो कई दफे पेशेंट कहता है सर दर्द आ रहा तो मत कराइए, आइसोमेट्रिक छोड़ दीजिए, उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइज में कंफर्टेबल है तो पैसिव एक्सरसाइज कराइए, फिर थोड़ा आइसोमेट्रिक असिस्टेड एक्सरसाइज करवाइए और फिर धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरेगा फिर आइसोमेट्रिक। लेग कर्ल मशीन जिम में आपने अक्सर देखा होगा,
फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज टेबल होती है, उसमें भी वो करने को कर सकता है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप वेट जो है कर सकते हैं। जब पेशेंट आइसोटोनिक मूवमेंट कर सकता है तो आइसोटोनिक मूवमेंट करने के बाद हमने वेट ऐड कर देना है। क्योंकि शुरू में जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो ग्रेडेड होती है, तो वेट हमने शुरू से नहीं ऐड करना, वेट हमने बाद में ऐड करना, रेजिस्टेड एक्सरसाइज को बाद में ऐड करना। तो ये जिम में जाने वाली क्षमता तो बाद में आएगी, क्योंकि जिम में जो वेट ही है वो एक प्लेट का वेट ही 2.5 किलो से कम है। जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन एंड बैलेंस ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये प्रोप्रियोसेप्टर्स ये मसल्स में भी होते हैं, जॉइंट्स में भी होते हैं। तो अगर ये जॉइंट्स और मसल्स और हमारे लिम्ब की पोजीशन को ब्रेन को सूचना देते हैं, तो ये इनकी ट्रेनिंग नहीं होगी तो अनस्टेबल सरफेस पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। पैर जरा ऊंचा नीचा कहीं पड़ गया ग्राउंड में तो हमें लगेगा कि पैर हमारा जो है दोबारा से या तो ट्विस्ट हो जाएगा या मसल की दोबारा से इंजरी आ जाएगी। तो ये जो प्रोप्रियोसेप्टिव बैलेंस की ट्रेनिंग है वो हम एक अनस्टेबल सरफेस पे, जैसे आप इसमें देख रहे हैं फॉर एग्जांपल एक वोबल बोर्ड है और इस वोबल बोर्ड में नीचे गुटका सा ये देखें, ये patient is standing with both feet apart, and in this he is trying to do side to side movement, back and forth movement, and he is exercising his muscles and ankle on an unstable surface. So जब ये movement basically it is guided by the whole body, so back and forth, side to side, in all direction. You can do a circumduction also, rotation movement, clockwise and anti-clockwise direction. तो ये सारे तरीकों से हम एक्सरसाइज करते हैं, initially with both feet on it, and then standing on one leg in center. तो ये बहुत सारे इसमें with hands on side initially, hands on outstretched hands to provide more assistance to the body to stabilize it, and later on hands could be brought close together also, because when hands are by your sides it is more difficult. So in so many ways you can do wobble board exercises to enhance the ankle balance and balance in the lower extremity. So it is necessary not only in the ankle injury, it is necessary in all the injuries of the lower extremity, no matter which kind of injury it is. It is a knee injury, it is an ankle injury, it is a hamstring injury, quad injury, because the whole body works in tandem. So we have to advise all these exercises, and we are not to overlook. And at the same time, if you don't practice all these, there is a more chances of re-injury. So importance of proprioceptive and balance exercises to prevent the chances of recurrence. So we have to introduce these exercises in a part of our rehab. So this is in brief about some model rehab. So this is in brief about some model rehabilitation of most common injuries seen among a sportsman of all games. I'm not game specific. I'm in all games. We have seen where ankle and injury to the hamstring is more common, and I have given you example of how to deal with these injuries and how physiotherapists and doctors deal with rehabilitation of these injuries. So as I told you in our last classes, that no matter where injury is, what is the injury, whether it is a ligament injury or muscle injury, broadly the principles of rehabilitation are often same. If patient has sustained injury,
we have to undergo all kinds of fitness improving exercises, like strength exercises, like joint range of motion exercises, like endurance, stability, balance, coordination, agility, all sorts of exercises and functional exercises in the terminal stages of rehab. And at the same time, when the patient is nearing his completion of rehab program, so in the end, he should be referred to the coach for the skill training, because you see, game specific skills are different, and physiotherapists may not be having the knowledge and capability to teach him about what are the basics of the game. So for skill training, advanced training in the last phase of rehab, help of the concerned coach is taken and patient is referred to him. Now it is the responsibility of the coach to put him on a graded resumption of the game by teaching him some basic skills of the game and then progressing to the more complex activities performed in that particular game. So ये चीज का बड़ा ध्यान रखना है हमने, बड़े धीरे धीरे करना है, क्योंकि बहुत जल्दी अगर कुछ टू फास्ट टू मच टू सून वाला जो पॉलिसी है वो काम नहीं करेगा और उसमें कहीं ना कहीं हम फिर दोबारा बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे, पीछे आ जाएंगे, और वो हम नहीं चाहते हैं। इसलिए सबके सहयोग से प्लेयर को कंप्लायंट होना पड़ेगा एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में कोच को भी उस बात को समझना पड़ेगा कि पेशेंट अभी गेम में अभी नया आया है तो ही शुड बी ट्रीटेड लाइक ए नोविस। उसको ऐसे नहीं करना है हमने कि उसको एक ट्रेंड मजा हुआ एथलीट पहले था, वो मजा हुआ था कभी बिफोर occurrence of injury. Now after the injury he is rejoining the game once again, you can say. तो अब इसको उसका जो रिटर्न है बड़ा स्मूथ रिटर्न रहे और धीरे धीरे उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाए, और वो तभी होगा जब हम उसकी ग्रेडेड स्किल ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको कुछ आज मॉडल रिहैब के रिहेबिलिटेशन ऑफ कॉमन लिगामेंट एंड मसल इंजरी के बारे में बताया।